So soul, spirit and body. Okay? So soul, spirit and body, आत्मा, प्राण और शरीर. आत्मा, प्राण, हिंदी में आत्मा, प्राण और शरीर. So ये कहां से मैंने ये पेश किया है? It is from the Bible. ये बाइबल में ही है, आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में. So what does Bible talks about? बाइबल क्या बताती है soul, spirit and body के बारे में? Because हम लोग को समझना है, जब हम लोग एक इंसान बोलते हैं, when we say about human, it's all about these three things. ये तीनों चीज हम लोग बनाए गए हैं, soul, spirit and body. हम लोग देखेंगे बाइबल क्या बताती है. You can see here, देख सकते हो यहाँ पे, जो आसानी से पढ़ सकते हैं. 1 Thessalonians, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. तो यहाँ पे जब मैं जो ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, whole soul, spirit and body means we have soul, spirit and body. परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, you all can see in the picture. परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने धूल से लेकर, मिट्टी को लेकर आदम को बनाया. उसके बाद जब परमेश्वर ने आदम को अपना सांस छोड़ा, उसके बाद आदम एक लिविंग सोल बन गया, बाइबल बताती है. आमेन. दैट मींस जब आदम 10 था, जब परमेश्वर ने अपना सांस नहीं छोड़ा था, तब आदम क्या था? एक डेड बॉडी. But when God released his breath into Adam's nostril, the Bible says, he became a living soul. That means परमेश्वर का जो सांस है वो लाइफ देता है. Amen. परमेश्वर का सांस लाइफ देता है, इसलिए आदम एक जीवित प्राणी बन गया. But remember these three things, because मैं इसे कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, soul, spirit and body. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आदम, okay, you can see from this verse, I've already explained this. And the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So he became a living soul. And बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, उसको अधिकार दिया था to rule over in the Eden garden. परमेश्वर ने जानवर बनाया, पेड़ पौधा बनाया. आदम को बोला कि आदम तुम you rule over, तुम राज करो उस बगीचे में. Amen. See, जानवर का स्पिरिट नहीं होता है. परमेश्वर ने केवल स्पिरिट आदम को ही दिया था. बिकॉज अगर जानवर को भी वो स्पिरिट मिलता, परमेश्वर का स्पिरिट मिलता, तो परमेश्वर नहीं बोलता आदम को कि तुम राज करो. Why God said to Adam, you have authority? Because God gave his spirit only to Adam, not to the animal. परमेश्वर ने आदम को ही उसका आत्मा दिया था, इसलिए बोला कि तुम अधिकार चलाओ. इसलिए today we should understand that animals cannot be God. Animals cannot be our God. Animals should be under human being. We have to have authority over the animals. हम लोग नहीं बोल सकते कि ये जानवर है, मेरा भगवान है. Because animals, बाइबल क्लियर बताती है कि आदम को ही वो अधिकार दिया था. आदम ने ही सारा जानवर को नाम दिया. Amen. He gave the name to every animals. So it is Adam who has authority over the animals, not animals over him. Amen. So इससे पता चलता है कि परमेश्वर का आत्मा केवल मनुष्य के ऊपर है, not in the animal. Amen. So now what happened? Now when God said, Adam, if you eat this fruit, you shall die. If you eat this fruit, you shall die. तो परमेश्वर ने बोला आदम को कि अगर तुम खाओगे तो तुम मरोगे ही, you will die. तो जब आदम ने, ईव ने जब खाया वो फल, when Eve was deceived through that serpent, उसके बाद क्या हुआ? जब ईव ने खाया वो फल, तो क्या हुआ? आदम ने भी जब खाया, you see that
you see that we see in the Bible that वो लोग देखा कि वो लोग नंगे हैं. They were naked. As soon as they eat the fruit, they feel that they were naked. Then we see that before, when God created Adam and Eve, the Bible says कि they were naked, but they were without a shame. परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, बाइबल बताती है कि they were naked, वो लोग नंगे थे, पर वो लोग उनको शर्म नहीं था. Amen. Before sin they have no shame, but after sin, जब पाप करने के बाद ही वो लोग देखा कि अरे हम लोग का कपड़ा नहीं है, तो खाने के बाद क्या हुआ, वो लोग पता चला कि we are without clothes, so they hide. वो लोग छुप गया, परमेश्वर से छुप गया. So पाप ने क्या किया? See, before sin they could not feel ashamed, but after sin when they have disobeyed, वो लोग देखा कि we are without clothes, तो they feel ashamed. That means जब डिसओबे किया आदम ने, तो क्या हुआ, आदम का स्पिरिट जो है वो इंस्टेंटली मर गया, परमेश्वर से सेपरेट हो गया. क्या हो गया? सेपरेट हो गया. जब as soon as Adam eat the fruit, the glory of God left them. Like I'm touching here, okay? So ये गिर जाएगा, मैं हर तरह गिर जाएगा ये. You call it right? So ऐसे ही जब आदम ने वो फल खाया, आदम का जो परमेश्वर का महिमा का आदम और ईव से हट गया. उसके बाद क्या हुआ, वो लोग देखने लगे we are naked. So God, what happened? Separation. जब परमेश्वर था तब तो उनको फील नहीं किया वो लोग नंगे हैं, but after they sin, they feel ashamed. That means something has been separated. जब परमेश्वर के साथ था ऐसा नहीं था, एक अलग एक्सपीरियंस हो गया without God. Amen. That means some sin has done something to the humankind. पाप ने कुछ किया है मनुष्य को. क्या है? सेपरेशन. जब बाइबल में आप देखते हो कि डेथ, DEATH, डेथ का जो वर्ड है, दिस इज सेपरेशन. ओके, अलग, परमेश्वर सेपरेशन, परमेश्वर रिश्ता नहीं, परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं. तो आदम में क्या हुआ, आदम का जो कनेक्शन है परमेश्वर के साथ वो टूट गया. Amen. So what happened? बाइबल बताती है कि आदम तुम जिस दिन खाओगे तो तुम मरोगे. But did Adam die? He didn't die instantly. He lived for 930 years. 930 বছর ही जिया ने, तार पिछले आदम मरे, उसके बाद ही आदम मरता है. तो मैं थोड़ा जो ऑर्डर है मैं उसको बोलूंगा, कैसा आत्मा, सोल एंड स्पिरिट क्या हुआ, मैं उसके बारे में बताऊंगा. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आदम का जो आत्मा है वो खाते ही वो मर गया. ओके, वो एक्सप्लेन किया कि आफ्टर ईटिंग his spirit was dead, God's glory left him. And next उसका सोल, जो सोल है, सोल क्या होता है? सोल हम लोग जब एनिमल्स, जानवर जो है उन लोगों को सोल होता है और बॉडी होता है. सोल क्या होता है? आप मतलब विलिंग, ओके, विलिंग. एनिमल का भी कुछ इच्छा होता है. इच्छा मीन्स व्हाट? अगर आप कहीं पे, हम लोग का जब बचपन में हम लोग का गोरू था, गोरू गाय, तो उधर चलो बोले से उधर चलता है, नहीं मुझे वही खाना है, हम होते कि एनिमल. हम लोग जब कुत्ते घर में, चलो अभी सोते हैं बोले से, नहीं मैं नहीं सोऊंगा, वो थोड़ा खेलना चाहते हैं. तो एनिमल्स हैव दैट विलिंग कि मुझे अभी नहीं सोना है मालिक, बट दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट कम्युनिकेट, सो दे डोंट हैव द स्पिरिट, बट दे हैव अ सोल, दे हैव अ बॉडी. तो आदम का क्या है? आदम हैज अ स्पिरिट, ही कैन स्पीक विद गॉड, ही हैज अ सोल एंड ही हैज अ बॉडी एज वेल. आमेन. तो क्या हुआ, जब आदम ने वो पाप किया, वो फल खाया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आत्मा मर गया, उसके बाद उसका सोल क्या होगा? सोल क्या हो गया? पोल्यूट हो गया. पोल्यूट, ओके, पोल्यूट मींस ही बिगेन टू थिंक नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज़ परमेश्वर से सेपरेट हुआ तो आदम का होपलेस हो गया. ही वाज विदाउट होप. अबंडेंट था ईडन गार्डन में, जब सेपरेट हुआ उसके पास अभी खाने के लिए अभी सोचना पड़ेगा. He had to think about his food. He had to work hard. But before sin, he could eat the fruit. Amen. Okay, this is where the picture is where the Eve was deceived through the serpent. शैतान ने जब बोला खाओ तो खा दिया, उसके बाद उनको ये मुसीबत आया.
पास्टर जॉन का जो वाइफ है एक बार बोला था, जब मैं स्वर्ग जाऊंगा इस औरत को मैं पहले थप्पड़ मारूंगा, उसके वजह से हम लोग आज मुसीबत में हैं। राइट? So yeah, because of this is truth actually. Of course, we cannot slap her, because Jesus took the slap. Amen. जो लोग वो किया, Jesus took the slap, the beaten on the cross was because of their mistake. And of course, we came from them, and because of if they are forgiven, so we will also be forgiven. Amen. So ये पिक्चर है, ये मैं थोड़ा AI से मैंने वो डाउनलोड किया. This is Adam, okay, Eve. उसके बाद क्या हुआ? Who's this? Yeah, Cain and Abel. तो आदम ईव ने जब पाप किया उसके बाद वो लोग दो बेटा को पैदा किया, केन एंड एबल. केन कौन था? केन वाज लाइक ही वाज डूइंग कल्टीवेशन, कल्टीवेट किया था. ही गॉस और वो आसामी पेड़ पौधा वो फसल का वो किया था. ओके, एंड जो उसका भाई एबल है वो बकरी को संभालता था, देखभाल करके, शेफर्ड. तो इसे वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे जब आदम ने वो जब पाप किया उसका सोल करप्ट हो गया. ओके, उसका सोल करप्ट हो गया. देन उसका क्या हुआ? आदम 900 साल जिया, उसके बाद उसका बॉडी भी मर गया. 900 साल. दैट मीन्स जो पाप था, वो जो मृत्यु था, पहले उसका आत्मा में एंट्री किया, आत्मा को मार दिया, उसके बाद सोल को मार दिया, उसके बाद बॉडी को मार दिया. ओके, आदम लिव 30 years disconnected from God, and eventually he died at the age of 930. Amen. तो सोल का भी बात करेंगे. जो सोल है, दोनों बेटा को तो पैदा कर लिया. उसके बाद देखते हैं एक दिन वो दो बेटा, दिस इज एबल, दिस इज केन, ये दो बेटा एक दिन परमेश्वर का प्रेजेंस में जाते हैं और वो लोग ऑफर करते हैं परमेश्वर को. दे ऑफरिंग. सो एबल क्या करते हैं? जो सबसे प्योर है, पहला जो बकरी है, वो परमेश्वर के सामने लाके उसको ऑफर करते हैं. एंड एबल क्या करते हैं? वो पहले सब कुछ खा लिया, जो बचा हुआ है वो परमेश्वर को देता है लाके, परमेश्वर ले लो. एंड गॉड डिड नॉट एक्सेप्ट Cain's offering because he offered. अगर आप घर में किसी मेहमान को बुलाओ, हाँ आइए खाना खाने आइएगा, हम लोग पहले खा लेंगे, उसके बाद जो बचा है वो आप लोग खाइएगा. आप लोग बोलेंगे ऐसा? नहीं बोल सकते. तो Cain did the same way. If you see the original manuscript, you will find that Cain was not giving his best to the Lord. उसका बेस्ट परमेश्वर को नहीं दिया, लेकिन जो बचा गया था वो खा लिया, उसके बाद दिया था. लेकिन एबल ने क्या किया? डिफरेंस क्या है? एबल gave the best to the Lord. That's why God accepted. You can see on the side of Abel, God, परमेश्वर का जो मैंने एडिट करके लगाया है. So and यहाँ पे एबल है, वो क्या हो गया? See, as soon as God accepted, he realized that my offering is rejected. मेरा ऑफरिंग रिजेक्ट हुआ है. तो क्या हुआ? केन गुस्सा हो गया. तो जो गुस्सा है किसके ऊपर? उसके भाई के ऊपर. तो व्हाट इज वर्किंग इनसाइड हिम? द सोल. उसका प्राण काम कर रहे हैं. मेरा भाई को एक्सेप्ट किया, मेरा नहीं किया. उसका सोल, ये आत्मा मरा हुआ है. बिकॉज़ स्पिरिट विल नेवर अलाउ यू टू किल समवन. सो आदम gave birth to two sons and they were born in sin. क्या बोला है? Born in sin. डेविड क्या बोला है कि मैं मां के गर्भ में ही पाप में पैदा हुआ हूं. That means when they were in Eve womb, they were already in sin. So they were born in sin. So their soul operated in sin nature. That's why what happened? He killed his brother because of jealousy. वो उसका भाई जो है उसको क्यों मारा? क्योंकि वो लोग पाप का नेचर में पैदा हुआ, और पाप का जो नेचर है, see that's why we have to understand that soul का काम क्या है. soul का हमेशा जेलेसी किसी के ऊपर, अरे उसके पास ज्यादा है, वो ज्यादा, उसके पास बड़ा घर है, उसका घर का मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं, उसके पास क्यों है ना. जेलेसी. स्कूल में जब हम लोग कुछ पेन लिखते हैं, पेन स्कूल के पेंसिल पेन जब स्कूल में लिखते हैं, तो दूसरा अगर कोई नया पेन लाएगा, हम लोग जेलस फील करते हैं, उसका पेन को मैं चोरी करूंगा. I steal his pen. So it's a jealousy. How it comes? Because that's a work of soul.
वो सोल से होता है, प्राण से होता है। आप पेन तो वो सूरी को ले जाओ। आई हैव स्टिल सो मेनी टॉयज फ्रॉम फ्रेंड्स, रबर, पेंसिल, शार्पनर। कितना चोरी किया दोस्तों से। वो क्या मेरा आत्मा था, ये मेरा प्राण था। इट वाज माय सोल। वो प्राण तो दिखी बोलो जेलसी कोई ले लो। जब कोई बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा है उससे मैं आजा कर सकता हूँ, वो क्या है, वो सोल है। वैसे ही सोल कभी गुस्सा हो गया, देखो गुस्सा होना गलत बात नहीं है, ओके। इफ समवन कम्स टू यू एट नाइट इन योर होम टू स्टील, you cannot stay silent. ए चोर, भाग जाओ मेरे घर से, बोलना पड़ेगा। That's anger. ए सो তুমি মোৰ ঘৰত কিয় আহিছা? আপুনি চুপ থাকিব নোৱাৰে, আপুনি খং কৰিব লাগিব, কাৰণ খংটো ভাল হয় যদি আপুনি ভাল কামত ইউজ কৰে। गुस्सा अच्छा है अगर आप अच्छा काम में यूज करते हो, किसी को सिखाने के लिए एंगर इज गुड। बट इसका एंगर कैसा था? ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। सी व्हाट हैपेंड। देखिए सोल ने क्या किया। सोल बोले से मैं उसका प्राण को बोल रहा हूं, ओके। उसका प्राण ने, इसका आत्मा कर रही है, प्राण कर रहे हैं, उसका भाई को मारा, उसका सोल कर रहा है। तो उसका सोल ने उसका भाई को मार दिया। मारो तुम अपने भाई को, आवाज आया मारो उसका, अपने भाई को मारो करके। Then he killed his brother. आज जो आप लोग देख रहे हैं ना दुनिया में, जो झगड़ रहे हैं नेशन टू नेशन, पॉलिटिक्स में झगड़ा, फैमिली में झगड़ा, जो फैमिली में शांति नहीं है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ सोल एंड फ्लैश। अभी हम लोग देखते हैं कि बाइबल बताती है कि अंत के टाइम में लड़ाई होगा, प्रेम नहीं होगा, बच्चा अपने माँ को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, बात नहीं सुनेगा। ये क्या है? इज अ वर्क ऑफ सोल। सोल से इन्फ्लुएंस होगा लोग। तो दिस इज द फर्स्ट, जो पहला व्यक्ति है दुनिया में जो मरा, डेथ एक्सपीरियंस किया है, इट इज एबल है। और पहला जो मर्डर है, जो फिजिकल मर्डर है, कौन है? केन है। सो वो क्या है? He doesn't have, his spirit is dead। क्या है? जैसा उसका पापा आदम का आत्मा डिस्कनेक्ट हो गया, ये परमेश्वर का डिस्कनेक्ट है। That spirit is dead, disconnected। So he and because of the consequence of sin, notice here, पाप ने क्या किया? पाप ने अपना भाई बहन बीवी को मार देता है, बीवी को जला देता है। ऐसी पाप ने क्या किया? See the consequence. Amen। God spoke to Cain. If you do well, will you not be accepted? If you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you and you should rule over it। यानी परमेश्वर ने केन को बोला कि देखो, अगर तुम अच्छा करने से क्या मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा? And if you do not do well, sin lies at the door। That means what? परमेश्वर ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा जो सोल है, अगर तुम उसको सोल के हिसाब से चलोगे, you will do worse sin। इसलिए जिन्होंने भी आज यीशु को नहीं पाया है, their soul is very dangerous। कब आपको धोखा देगा? You cannot trust, because soul कब कम करेगा ना, अभी के लिए अच्छा होगा। I have met so many people in my life, अभी के लिए अच्छा है और अभी थोड़ा टाइम बाद बदल गया। That's a work of soul। You cannot trust। This is how soul function। So we Christians understand what is soul, spirit and body। This is a work of soul। तो परमेश्वर बोल रहा है कि आदम तुम अगर उसको रूल नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? The consequence what is speaking about। Amen। हम लोग समझ पा रहे हैं? Am I going to speak? And I've already explained this। Adam lived for all the day, and all the days that Adam lived were 930 years, and he died। Adam मर गया 930 years में। So Adam was living without no connection with God, and at the end he died। And same thing, Adam died, Adam मर गया, केन मर गया, एबल मर गया, सब मर गया। So what was ruling? Death was ruling। पूरा खानदान को खत्म कर दिया। See how what sin has done। Romans 3:23 हम लोग देखेंगे। बोला कि all have sinned and come short of glory of God। क्या बोला है? कि सबने पाप किया है। All have sinned।
आप लोग देखिए वर्स को, ऑल हैव सिन एंड कम शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। सबने पाप किया है। क्या यहाँ पे कोई है किसी ने पाप नहीं किया है? इज एनीवन हु हैव नेवर सिन? पाप नहीं किया? हम सब ने पाप किया है। Why? Because we are born, we came from Adam. Adam is the first man on earth, and his wife Eve. They gave birth to Cain and Abel, and through them, the earth, went on multiplication. God said to Adam, "Be multiplied." So we all are from the multiplication. कहाँ से हम लोग हैं? We all are from the multiplication. कि आदम को परमेश्वर ने बोला था, इसलिए हम लोग आज we exist. If no Adam, then we won't be exist. अगर आदम नहीं है तो हम लोग भी exist नहीं होगा। समझ पा रहे चर्च? अगर आदम नहीं है तो हम लोग भी नहीं होगा, बिकॉज आदम है इसलिए हम लोग भी है। एंड आदम का नेचर क्या था? उसने जो बेटा जन्म दिया उसका भाई ने मार दिया। तो सेम नेचर, वही नेचर फॉलो कर रहे हैं, वही नेचर फॉलो कर रहे हैं। जैसे बाइबल सेज कि ऑल हैव सिन, नोबडी कैन से आई हैव नॉट सिन, एवरीवन हैव सिन। अगर कोई बोले कि मैंने कभी पाप नहीं किया है, अगर कोई बोले कि मैंने पाप नहीं किया है, he is a liar, वो झूठा है। क्यों? आप तो यूं मरोगे। तो अगर आप नहीं मानते कि आप पापी हो तो आप क्यों मरोगे? अगर आप नहीं मानते हो पाप है, आपने पाप किया है, तो आप क्यों मरोगे? आपने अगर पाप नहीं किया तो आपको मरना नहीं चाहिए। कि आप मरोगे इसलिए क्योंकि आपने पाप किया है, आप पापी हो। ये बाइबल बताती है सबने पाप किया है। द कॉन्सिक्वेंस, The wages of sin is death. पाप का जो मजदूरी है मृत्यु है। इसलिए कोई भी नहीं बचेगा, जितना भी अमीर हो, गरीब हो, rich, poor, we all will die, because that's the curse of sin, is death. Amen. See what here it says, for there is not just man on earth who does good and does not sin. ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा काम करता है पाप और नहीं करता है। हम सब ने पाप किया है चर्च, हम सब ने पाप किया है। We all need Jesus. We all need Jesus. इसलिए डेविड बोला है कि मैं माँ के गर्भ में ही when we all were in our mother womb, हम लोग जब माँ का गर्भ में था तभी हम लोग का जो स्थान था where we were conceived, it was polluted. इसलिए बच्चा को सिखाना नहीं पड़ता है कि जब चोरी करो, जब स्कूल में जाके किसी का पेन चोरी करके लाओ, ऑटोमेटिक दे विल स्टील एंड कम। यू आर टीचिंग? नो, आपने नहीं सिखाया। दे लर्न बिकॉज दैट नेचर ऑफ सोल इज फॉलोइंग इवन टू योर जनरेशन। आमेन। I already explained this. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. For the wages of sin is death. इसलिए कोई भी नहीं बच सकता है। बाइबल हकीकत है। Whatever it is written is truth, and the truth will never change. If you have Jesus, you will have life, and if you don't have Jesus, you won't have life. Jesus says, I am the life, the truth and the way. Amen. Hallelujah. Come on, एक दूसरे को बोलो, Jesus is the way, the truth and the life. Amen. Amen, amen, amen. I've already explained this. Surely what David says, surely I was sinful at the birth, sinful from the time my mother conceived me. कोई बोलता है, मैंने एक दोस्त को बोला, मैं जब उसको गोस्पेल शेयर किया था तो बोला कि नहीं, हम तो पापी नहीं है। हम तो कैसे पापी है? हम तो पापी नहीं है। मतलब पाप कुछ नहीं होता है। दुनिया में जियो, जो करने करो उसके बाद जाओ। रीइंकार्नेशन, मरोगे और जियोगे, मरोगे और जियोगे। मतलब जो लोग चोरी किया, जो लोग गलत काम किया, वो लोग लाइफ को एंजॉय किया, तो मर गया और आके चोरी करेगा, जन्म लेगा।
हम लोग तो एकदम पवित्र जिया, कुछ भी किसी को गलत भी नहीं बोला, एकदम नम्र रहा, तो वी आर फुलिश देन। हम लोग मूर्ख है। फिर जो लोग धार्मिक जीवन जीते हैं हम लोग मूर्ख है, लेकिन बाइबल हम लोग मूर्ख नहीं है, वो लोग मूर्ख है। You believe in Jesus, you are wise. Amen. Hallelujah. Because आपने एक्सेप्ट किया कि मैं पापी हूं, इसलिए जब आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया तब क्या हुआ? आप रिपेंट जब हुआ कि लॉर्ड आई हैव सिन अगेंस्ट यू फादर, आई नो लॉर्ड दैट तुम्ही मूर्खाने मोरिसा क्रूसोर, तुम मेरे लिए क्रूस पे मारा परमेश्वर, मैं जानता हूं मैंने पाप किया है, मुझे माफ करो। दैट्स जिन्होंने भी वो कन्फेस रिपेंटेंस किया, दे हैव इटर्नल लाइफ एंड दिस द बेस्ट चॉइस, बेस्ट डिसीजन। आमेन। Now let's talk about how Jesus, okay, their soul, spirit के बारे में बोला, आत्मा मर गया, सोल मर गया। Now let's talk about what about Jesus? He also came in the form of human being. वो भी आत्मा के रूप में आया, तो उसका भी आत्मा था, सोल था और बॉडी था। We have to understand from the life of Jesus. So Luke 1:35, and the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One who is to be born will be the Son of God. जो मरियम का जो गोद में जो यीशु मसीह आया, वो लोग बोलता है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि यीशु मसीह एक इंसान का पेट में पैदा हुआ और वो विदाउट सिन? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल दैट मरियम वाज ए वर्जिन? ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्था एक कुमारी, राइट? मार्था एक कुमारी से बच्चा कैसे हो सकता है? बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। आई हैव डिबेट लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज न्यू इन क्राइस्ट। तो लोग बोलते हैं कि यीशु जन्म ही नहीं हुआ, पॉसिबल ही नहीं है, ये बायोलॉजिकली प्रूवन नहीं है, ऐसा बोलते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल बोलते हैं। या बायोलॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा परमेश्वर ने क्या बोला? जोसेफ को बोला, जोसेफ तुम मत डरो अपना मरियम को अपना बीवी के हिसाब से स्वीकार करने के लिए। उसका अंदर जो कंसीव हुआ है, दैट इज थ्रू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा। कि आदम के द्वारा होने से यीशु मसीह पैदा नहीं हो सकता। इट इज थ्रू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा। लोग बोलते हैं मतलब कि इट्स वेरी वियर्ड बट आई विल स्पीक दैट। लोग बोलते हैं कि क्या परमेश्वर और मरियम सेक्स किया? बिल्कुल ऐसा बोलते हैं। आई हैव डिबेट विद माय फ्रेंड्स, oh that means God has done sex with Mary. See how they think. बाइबल बताती है कि जो कर्नल मैन है, जो मनुष्य है, वो आत्मिक चीजों को नहीं समझता है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ गॉड विदाउट द होली स्पिरिट। You read the Bible for 10 hours whole day, you will not understand until and unless the Holy Spirit starts giving you the revelation. So जब होली स्पिरिट आया मार्था के मरियम के ऊपर, वचन बोला एंजल ने कि देखना तुम्हारा जो क्या बोला, Holy Spirit come and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that the Holy One is to be born and is to be called the Son of God. मरियम ने वो वचन को पाया क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला है, वो वचन ही उसको दिया। एंड क्या हुआ? वचन ही दिया, वचन the Holy Spirit will come, and the Holy Spirit came and Jesus was conceived in the womb of Mary. Amen. So it is the work of the Holy Spirit, because that's why in Christianity उद्धार जो है मनुष्य के तरफ से नहीं हो सकता है। The Bible says that कि रिडीम्शन जो है ये परमेश्वर का प्लान है। उद्धार अच्छे काम करने से हमको उद्धार नहीं मिलेगा। अच्छा काम क्या है? फटा कपड़ा का जैसा है। तो उद्धार के लिए एक मनुष्य से एक जो मनुष्य है उससे नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का पुत्र होगा। इसने बोला है कि द सन ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर को खुद आना पड़ेगा इस जमीन में, इस धरती में, तभी उद्धार होगा। अभी मनुष्य कोशिश कर रहे हैं उद्धार पाने के लिए, लेकिन मनुष्य कभी भी कामयाब नहीं रहेगा। That's why Jesus has to born through the Holy Spirit. He cannot born through man, because what Adam did is, आदम ने जितना भी पैदा किया सब सोल से क्या हुआ? सोल से चला, अपने भाई को मारा। अगर यीशु भी ऐसा ही पैदा होता तो यीशु कभी पवित्र नहीं होता। यीशु भी ऐसा ही नेचर होता हम लोग के जैसा, सोल नेचर, the fallen nature.
but Jesus is born from the Spirit, so he was, Bible says, he is without sin. यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है, इसलिए बोला है कि वो कुछ भी पाप नहीं किया है, वो पाप नहीं किया, हमारा पाप को लिया और वो पाप बना, उसको क्रूस में लटकाया गया। आमेन। सो यीशु मसीह पैदा हुआ होली स्पिरिट के द्वारा, एंड द पर्पस वाज टू गिव अस a new life, to give us a new spirit. Say new spirit. आपने of course बहुत सारा sermon सुना है, यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया, but आप लोगों को ये भी समझना है कि यीशु मसीह जो आदम का आत्मा मर गया था उसको रेस्टोर करने आया, जिलाने के लिए आया। Amen? See here. इंग्लिश में मैंने सॉरी आई हैव बिलो ना, सिंस हम लोग पढ़ेंगे एक साथ इन जो द इंग्लिश वाले, सिंस since therefore the children had flesh and blood, who have flesh and blood? You and I, we have flesh and blood. He also himself took the form of, he himself took the same why. यीशु मसीह तो स्वर्ग से भी डायरेक्ट आ सकता था, but that's not possible. Spirit cannot die. आत्मा नहीं मर सकता, इसलिए उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा शरीर लेना पड़ेगा, इसलिए वो शरीर जो लिया, that is यहोवा became Yeshua. Yehovah became Yeshua. So Jesus came, God came in flesh. यीशु मसीह मतलब क्या है? God came in flesh. परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया और सेम रूप लिया ताकि थ्रू डेथ he might destroy, ताकि वो मरने आया यीशु मसीह। ओके, यीशु मसीह मरने के लिए ही आया, तो मरने के लिए आया, उसके बाद वो क्यों मरने के लिए आया? ताकि वो नाश कर सके क्या है? मृत्यु का शक्ति को। वो मरेगा तभी मृत्यु की शक्ति मरेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है जो आदम was dead, his wife dead, his children's both of them dead, so death was continuously, generation after generation. And notice here, notice करो, अब्राहम 930 साल जिया, उसका ग्राफ देखो, see here, यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये जो माइक है कौन सा ऊंचा है? ये वाला ऊंचा है, इंच है, तो यहाँ पे आदम 900 साल जिया, उसके बाद देखो ग्राफ गिरते यहाँ तक आ गया। 900 साल से कहा 120 साल, ग्राफ नीचे आया। जो मृत्यु रूल कर रहा है, क्या रूल कर रहा है? देयर इज रूलिंग। देखो आदम का जो शरीर, आदम जिया है 900 साल, उसके बाद देखो कैसे ग्राफ गिरते आ रहे। अभी परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है 120 साल, लेकिन लोग 120 साल क्यों नहीं जीते हैं? बिकॉज नाउ पीपल बिकेम कॉन्शियस, ओ कैंसर हुआ है, नहीं मर जाऊंगा क्या? ओ ये बीमार हुआ है, शायद नहीं मर जाऊंगा क्या? एक बार मैं मम्मी के साथ गया, एक मेरा मामा के बेटी को प्रे करने के लिए, तो मेरा मामा का मॉम खराब नहीं पाना अगर तुम देखोगे बाद में वीडियो, ओके, she will understand if I speak in English. So I went with my mom. अरे मुंह माया चले बम्बई जब मेरा माँ देखने से वीडियो पता चलेगा, ये कोई बात नहीं। तो मम्मी के साथ मैं गया मामा का बेटी को प्रे करने के लिए। तो क्या हुआ, मेरा मामा का बेटी का जो किडनी है वो फेल हो गया और पेट फुली गोल मैंने स्टोमक इनलर्ज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग गया तो मामी पूछा क्या स्टार्टिंग में क्या सिम्टम्स क्या था, क्या हुआ? तो मेरा पेट दर्द हुआ, ऐसा हुआ, पेट दर्द हुआ, मेरा भी होता है, अच्छा मेरा भी हुआ है। सो क्या हुआ? डर किसी को हुआ है तो आपको भी होगा वो डर। जब आदम ईव उसका बेटा मर गया तो लोग सोचने लगा कि अरे मृत्यु भी होता है, बिकॉज आदम से पहले किसी ने भी मौत नहीं देखा था। इवन तो गॉड बोला कि तुम मरोगे, लेकिन डेथ का एक्सपीरियंस मीनिंग नहीं समझा था। जब कैन मारा अपने एबेल को, अरे ये मरता भी है क्या, समझ में आ रहा है कि मूव नहीं कर रहा है, खत्म ही है, वो इंटेंशन से नहीं मारा था वो,
बिकॉज किसी ने मौत नहीं देखा था, मारा लेकिन अरे ये मरता है वो, उसके बाद देखा कि सब लोग मरते आया मरते आया मरते आया, ओह मुझे भी मारना पड़ेगा। कोरोना में जब इंटरव्यू लिया गया एक व्यक्ति को, अभी तो लोग मर रहे हैं, आप क्या बोलना चाहते हो? क्या बोलेंगे? मरना तो पड़ेगा। फिर अपसेट, क्या करेगा? मरना तो पड़ेगा। देखो तो रियलिटी जो मृत्यु है वो हकीकत में लोग मतलब मानने लगे कि हम लोग मरेंगे एक दिन, लोग सोचने लगे। इसलिए ग्राफ कहां से कहां पे आ गया? 120 साल गिरते गिरते गिरते। Now also, but see, I declare that our One Faith Church will live long. God has promised 120 years, and Bible says कि परमेश्वर का मुंह से जो निकलता है वो झूठ नहीं है। That means we will live long. Amen. We will not believe कोई कैंसर हो रहा है, वो मर रहा है, वो बाहर मर रहा है। हम लोग कौन है? परमेश्वर से हम लोग जन्म हुए व्यक्ति है। Amen. We are born of God. So, वो मृत्यु का डर को आने नहीं देना है। जो आदम ने जो देखा मरा 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 मरा, इसलिए यीशु सिनेरियो में आ गया। वो आया ताकि मृत्यु को हरा सके, उसका मृत्यु के द्वारा he can destroy the death through his death. Amen. Why Jesus came? To die for you. तो खाली मृत्यु ही है क्या? यीशु जी उठा। हालेलुया, he raised from the dead. वो मर के जी उठा और बोला कि जो कोई मुझे विश्वास करेगा वो भी नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। अपनी और मैं कौन है? आप और मैं कौन है? Can I only explain this? Look here. Therefore, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Behold, all things have become new. किसको बोल रहे हैं? आपको और मुझे बोल रहा है। जिसने भी यीशु को विश्वास किया वो नया हो गया, पुराना चीज चला गया, वो नया व्यक्ति हो गया। आमीन। ये नया क्या है? John 1:12. But as many as received him, to them he gave the right to become the children of God, those who believe in his name. आपने यीशु को विश्वास किया तो आप भी परमेश्वर का संतान हो। आपको मृत्यु से डरने का जरूरत अभी नहीं है। यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। He's defeated the death. There is no power. कुछ मेरा यहाँ पे पेन हो रहा है, शायद मैं मर जाऊंगा। जब Pastor, I think you remember or not, when for the first time जब मैं भांगर में तब था, फेलोशिप हो रहा था भांगर में, उसके बाद मेरा किडनी का स्टोन हुआ था। 2 बार मेरा अटैक हुआ किडनी का। नेक्स्ट टाइम वाला ही मैं रिव्यू करके मैं वो हीलिंग हुआ। उससे पहले भी आया था, पास्टर आप जाके प्रे किया था मुझे। तो इतना पेन हो रहा है, इतना पेन, जब किडनी का स्टोन था इतना पेन, मैं सोचा कि मैं तो गया, मैं भैया मैं तो जा रहा हूँ। Not pastor, but my own brother. I said, भाई बोला नहीं मरोगे तुम। तो मैं सोचा कि लड़की जब प्रेग्नेंट होता है ऐसे दर्द सहता होगा, मेरे मम्मी ने ऐसे ही पेन सहा होगा मेरे लिए। ये तो समथिंग पेन की, ये कुछ मुंह से अगर निकल के सोचो पेनफुल, कितना पेनफुल होगा। कितने लोग किडनी पेन से गए हैं, किडनी स्टोन का पेन से गए हैं? बहुत पेन है, बहुत पेन होता है। तो मैं सोचा ये तो खतरनाक पेन है, मैं तो नहीं रहूंगा जिंदा। तो क्यों ऐसा बोला कि वो रियलिटी को क्यों मैंने बोला नहीं मरूंगा? क्योंकि मैंने मृत्यु देखा है, लोग मरते हैं। इसलिए मेरा जो सोल है, अरे सोल लॉजिक लगा दिया कि तुम भी मरेगा, पेन हो रहा है। तो सोल क्या कर रहा है? जो सोल दिखता है आंखों से वही बिलीव करता है। हम लोग विश्वास के बारे में सीख रहे हैं, देखने के द्वारा नहीं चलते लेकिन आत्मा के द्वारा चलते हैं। दैट मींस सोल ही देखता है और वही लॉजिक लगाते हैं, वो मरेगा, तुम क्यों नहीं मर सकते? उसका कैंसर हुआ था तो तुम्हारा भी हुआ है, तुम क्यों नहीं मरोगे? देखने का जरिया। When soul believe it, जब सोल विश्वास करता है उस झूठ को, तभी आदमी लोग मर रहे हैं।
जल्दी से। लेकिन जो कोई विश्वास करेगा नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूं, उस सच को हमें दिलाना है अपने माइंड को। आमेन। ये टू रिन्यू योर माइंड। हालेलुया। सो यहां पे देखिए जॉन का 14:12, मोस्ट एश्योरली आई से टू यू, he who believes in me, the works that I do, he will also do, and greater works than this he will do, because I go to my Father. एक बार पढ़िए आप लोग एक साथ, come on. Surely I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this he will do, because I go to my Father. I go to my Father. ये किसको बोल रहे हैं? I say to you. वो लोग सोचते हैं कि खाली चेला लोग को ही अधिकार मिला था, चेला लोग ही वो कर पाएगा, पर में यीशु मसीह का जो ये कमांड्स है, it is only for the disciples, ऐसा सोचते हैं। नहीं मेरे प्रियो, that's a false teaching। क्या है? false teaching है। यीशु मसीह जो किया है हम सब भी करेंगे। He defeated the death, मृत्यु को हरा दिया है। अभी हम लोग को राज करना है। यीशु मसीह आके राज किया। हम लोग पास्टर उस दिन प्रीच किया था कि जब यीशु मसीह जब एक औरत मर गया था, यीशु मसीह गया और उस औरत को जिलाया। यीशु मसीह बोल रहे नहीं ये मरा नहीं है, बाकी लोग तो सब रो रहा है, क्या होगा मेरे बेटी का, मर गई। यीशु आया, नहीं वो मरा नहीं है, वो मरा नहीं है। बाकी लोग हंसा, लेकिन आप और मुझे वो हंसना नहीं है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है और मैं चंगाई जीवन जीऊंगा। He has healed us, He has redeemed us. उसने हमें उस पापों का श्राप से हमें मुक्त किया है। यीशु मसीह बोला कि इसलिए मैं जो करता हूं तुम भी करोगे, तुम भी करोगे। बोलो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। इट्स नॉट ओनली डिसाइपल्स, 12 चेला नहीं, हम लोग भी हैं। क्योंकि अगर उस टाइम में शैतान था, अभी भी शैतान है क्या? शैतान, ऑफ कोर्स शैतान का जो पावर है वो यीशु मसीह ने क्रूस पे खत्म कर दिया। यीशु मसीह क्रूस में जब मरा, शैतान हर श्राप को, हमारा पाप को क्षमा किया और जो कर्ज था सब तोड़ दिया। इसलिए गलेशियन बोलता है कि Christ has redeemed us from the curse of the law. यीशु मसीह ने हमें वो जो श्राप से हमें आजाद किया है। हालेलुया। तो हमें आजादी जीवन जीना है। एंड यीशु मसीह जो बोले तुम भी करोगे, उसको हमें करना है। अभी और इंटरेस्टिंग आएंगे हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। दिस एंड दिस, चलो ये किसको बोल रहा है? This is a sign will follow to those who believe. They will drive out demons in my name and they will speak in new tongues. That means आप और मुझे शैतान को भगाने का एक टास्क मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है हमें शैतान को भगाने के लिए। पर आजकल हम लोग डरते हैं बीमारी से। But we are not to fear like Adam Eve, because हमें उस क्रूस को देखना है। यीशु मसीह ने क्रूस में क्या बोला? It is finished. Finish बोलो, finish। एक दूसरे को बोलो finish। खत्म। क्या खत्म? शैतान का काम को यीशु ने खत्म किया। वो जब मृत्यु से जी उठा, बाइबल बताती है कि ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, ओ मृत्यु तुम्हारा की कोई तो हनी का जो स्टिंग डंक, ओ मृत्यु तुम्हारा डंक कहां गया? कि यीशु मसीह को मौत नहीं रुक पाया। यीशु मसीह जी क्यों उठा? That's why Adam died, Cain died, Abel died, all died. Only Jesus raised from the dead, and that's our God. Hallelujah! And we believe in Him. He said, "I am the resurrection and the life. Those who believe in me shall never perish but have eternal life." Amen. Hallelujah.
See here, very interesting. Let's read together. They will pick up their snacks, and if they drink any of them, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover. They will lay hand on the sick and they will recover. See, जब आप यीशु मसीह को विश्वास किया, आपका जो आत्मा है जो मर गया था आदम की वजह से, that spirit is been now resurrected. आपका जो आत्मा है वो जीवित हो गया है. इसलिए बाइबल बताती है कि पौल बताती है कि हमारा जो परमेश्वर के साथ रिकॉन्सिलेशन हो गया. रिकॉन्सिलेशन मतलब क्या? रिश्ता बन गया. इसलिए हम लोग अभी we can call God as our father. We are being reconciled. हम लोग का जो रिश्ता टूट गया था, because बाइबल बताती है कि we all have fall short of the glory of God. So हम लोग सब परमेश्वर से दूर थे, लेकिन यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद आपका आत्मा वापस जिंदा किया गया. चर्च, इसलिए आप परमेश्वर का भी अब्बा पिता बुला सकते हो. जब भी प्रार्थना करते जाओ, लाइक ए रिचुअल, ओ ये करने से ही होगा. नहीं. ओ खाली मेरा घुटना टिकने से ही मेरा प्रार्थना सुनेगा. जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये डिसरेस्पेक्ट हो गया. ओ मैं आज एक आंटी मुझे बोला, तुम क्यों खाली ब्लैक ड्रेस पहनते हो? शैतान का है. आंटी आपका चूल काट देते हैं. मैं बोल दिया सर. सी लोग रिलीजियस कि ये सब करने से परमेश्वर नहीं सुनता है. अरे बाहर का नहीं, अंदर का है जो आत्मा है, वो आत्मा जिंदा किया गया और वही आत्मा परमेश्वर के रिश्ता बन गया अभी. It's not about other parents. हालेलुया. आपका आत्मा मेरा आत्मा जिंदा किया गया है. जैसे ही आदम का आत्मा को पाप ने आदम का आत्मा को मार दिया, आत्मा मार दिया, सोल मार दिया, बॉडी मार दिया. अभी यीशु मसीह भी क्या कर रहा है? हमारा जो आत्मा है रेस्टोर हो गया. अभी सोल भी रिन्यू हो रहा है, बॉडी भी रिन्यू हो रहा है, सैंक्टिफाई हो रहा है. Amen. I can explain this. Yes. Lay hands. See your body. Say my hand. Your हाथ. मेरा हाथ बुखार को ऊपर रखने के लिए. और क्या बोला है? चंगाई होगा. Yes. Because see, when you are in Christ Jesus, your whole soul, spirit and body is sanctified. आपका आत्मा sanctified हो, आपका आत्मा नया हो गया, माइंड भी नहीं होगा और बॉडी भी, it will come into obedience of the spirit. So इसलिए जब कोई बुखार है, वो उसको पकड़ने से क्यों चंगाई होगा? क्योंकि मेरा हाथ अभी मामूली हाथ नहीं है. दिस बॉडी, ये जो हाथ है मामूली नहीं है अभी. दिस बॉडी इज कैरिंग द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड. हम पकड़ नहीं पा रहे. ये जो बॉडी है सुपरनेचुरल है. यू माइट थिंक दिस इज जस्ट अ बॉडी, बट व्हाट इट सेज, ले हैंड ऑन सिक. ये बहुत लोग बोलता है, मैं बहुत लोग से मिला, अभी कोई भी स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं चाहिए, हीलिंग नहीं होता है. तो भाई ये क्या है? यीशु मसीह ने क्यों बोला हाथ रखने के लिए? डू यू लाइक यू आर गोइंग टू ले हैंड ऑन सिक ऑन हेवन? यू थिंक दैट देयर विल बी सिक पीपल इन हेवन? आपको लगता है कि बहुत है कोई बोलते कि हीलिंग कुछ नहीं होता है, बीमार को लेके पर चलना है, विश्वास नहीं करना है, बीमार को लेके चलना है. तो ये बोलते हैं कि तुम हाथ रखो बुखार के ऊपर, हाथ रखोगे तो वो चंगाई होगा. अभी स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में कोई भी बुखार नहीं होगा, इधर बुखार हो रहा है. इसलिए आप और मेरा बॉडी परमेश्वर ने सैंक्टिफाई किया है, आपको बुलाए मिनिस्ट्री में ताकि आप जाके बुखार के ऊपर हाथ रखो, वो चंगाई होगा ही. दिस इज द प्रॉमिस ऑफ जीसस. हालेलुया. एंड सर्पेंट को उठाएगा बोल रहा है. दैट मींस व्हाट? कोई अगर बुखार है, आप टचिंग है, शैतान को ये मतलब होल्डिंग द सर्पेंट विल पिक अप द सर्पेंट एंड थ्रो. And they will drink a deadly thing. ये कोई स्पिरिचुअल नहीं है, ये पैराबल्स नहीं है, कोई फिगरेटिव नहीं, ये लिटरल बॉडी को बोल रहे हैं. अगर किसी ने आपको जहर पिला दिया, आप नहीं मरोगे, because your body carries the spirit of God, the Holy Spirit.
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है? दैट मीन्स आपका जो शरीर है वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर आत्मा आपके अंदर है। दैट्स व्हाई जब आप किसी को हाथ रखोगे वो चंगाई होगा, बिकॉज इट इज थ्रू द होली स्पिरिट। दैट्स व्हाई इट्स माय हैंड, माय हैंड, एक दूसरे को, माय हैंड is powerful. I can lay hand on sick and they'll get healed. My body is a temple of the Holy Spirit. मैं जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो चंगाई होगा, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं आशीषित हूँ, मेरे ऊपर, मुझ में anointing one, what we call in Hindi, the anointed one, अभिषेक वाला मेरे अंदर रहता है। वो कौन है? यीशु का आत्मा। हालेलुया। See your body, Jesus need your body। परमेश्वर को आपका शरीर चाहिए। Why? Because अगर आप परमेश्वर को अपना शरीर नहीं दोगे तो he cannot heal. Jesus will not come and heal the sick people now. যিশু খ্ৰীষ্টই এতিয়া আহি পেলাই বিমাৰক সুস্থ নকৰে, আপুনি কৰিব লাগিব। यीशु मसीह आके वो बीमार के ऊपर हाथ नहीं रखेगा, आपको रखना पड़ेगा। वो रख के गया, वो मरा, वो गया और बोला कि मैं पिता के पास जाता हूँ ताकि मैं तुम्हें और सहायक भेजूं, और वो सहायक तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। And he's teaching us to lay hand on the sick. Amen? He's teaching us to lay hand on the sick. बीमारी का हाथ रखी बोलने का कारण है। यीशु मसीह क्या बोला? पौल क्या बोल रहे हैं कि हम लोग सब यीशु मसीह के साथ, let's read the verse. I hope वो वर्स मैंने नहीं गवाया है। नो, वो वर्स चला गया। ओके, सो आप लोग इफिशियंट में पढ़ा है। वेल पॉल बताता है कि हम लोग भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग स्थान में बैठे गए हैं। We all are seated with Christ in heavenly places. Can you digest this truth? आप यहाँ हो, लेकिन आप, बाइबल बताती है कि आपका आत्मा यीशु के साथ बैठा हुआ है। उसका मतलब क्या है? You believe in Jesus, the same position we are representing Christ on this earth. यीशु मसीह को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का अधूरा काम क्या है? हम लोगों को अकम्प्लिश करना है, आत्मा जीतना है। Amen? He chose the 12 चेले को चूज किया और आपको भी चूज किया है। इसलिए बोला है कि जो कोई मुझे विश्वास करेगा। Let's read. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, because your body has become a supernatural body. शैतान अभी आपका जो, of course, not big sin. झूठ में नहीं रहना है कि शायद मेरे में कुछ बीमार है, शायद मेरा ये बाइबल का बात, शायद मैं लोग सोचते हैं ऐसा कि शायद मैं बीमार हूँ, शायद मैं अभी पापी हूँ, मैं अभी भी उस नरक जाऊंगा। See, I'll tell you, अब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब आप मरे हुए थे, बट जब यीशु मसीह को आपने जाना, एक्सेप्ट किया, आपका न्यू ब्रेन स्पिरिट अलाइव हो गया, और आपका स्पिरिट जो है, सेम स्पिरिट यीशु मसीह को जो मृत्यु से जिंदा किया, वही स्पिरिट आपके अंदर रहता है। आमेन। सो नहीं सोचना है कि ओ मेरा ये डिसीट है, ये झूठ है शैतान से, कि ताकि आप परमेश्वर काम को ना करो। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि प्रार्थना करने से भी बीमार ठीक नहीं होता है, प्रार्थना करने से भी बीमार ठीक नहीं होता है, तो वो लोग दूसरे को भी इनकरेज करेगा, प्रार्थना वार्थना बहुत किया यार, ठीक नहीं होता है। सो देयर इन्फ्लुएंसिंग। आपको समझना है वचन क्या कहता है। वचन कहता है कि मुझे हाथ रखने को बोला है किसी के ऊपर, यानी फर्स्ट थिंग इज टू यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ। पहला जो परमेश्वर का काम जो है आपका लाइफ में, पहले आपको टेस्ट एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यू नो व्हेन पास्टर जब हमारे फेलोशिप हो रहा था, तो पास्टर ने हमें अधिकार के बारे में सिखाया था। उससे पहले मैं ये सब नहीं जानता था। तो उससे पहले तो जब भी बीमार होता है, बुखार होता है, मैं डर जाता हूँ
क्या होगा, मैं ऑलरेडी बोला मैं मरने के लिए सोचा था। लेकिन जब मैंने ये अधिकार के बारे में सीखा, यीशु मसीह ने क्या अधिकार हमें दिया है, तो मेरा पायल्स हुआ था, तो बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, मैं डर गया था। उसके बाद पास्टर का टीचिंग को याद आया। पास्टर बोला है कि यीशु मसीह का कोड़े खाने से हम लोग जिंदा हुए, हम लोग यीशु मसीह के मार खाने से हम लोग चंगा होते हैं। वही चीज को मैंने अप्लाई किया जब मेरे ब्रीदिंग हो रहा था। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। व्हेन आई वाज डिक्लेयरिंग दिस, जब मैं ये घोषणा किया, उसके बाद मैं चंगा हो गया इंस्टेंटली। नेक्स्ट टाइम हुआ ही नहीं। क्या है वो जो आप जब घोषणा करते हो, तो आप पहला टेस्टिफाई किया खुद के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेस्टिफाई योरसेल्फ। एंड देन सेकंड एक्सपीरियंस मेरा, जब मैं बाइबल स्कूल में था, मैं बुखार था, तो सब लोग दवाई ले रहे हैं। आई सेड द गॉड हु हील मी फ्रॉम द पाइल्स विल हील मी अगेन फ्रॉम दिस सिकनेस। देन मैं घोषणा किया, एक रात घोषणा किया, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत बुखार। नेक्स्ट डे बहुत बुखार, तो सर बोला कि तुम लोग क्लास मिस नहीं कर सकते, अगर तुम लोग क्लास करना है तो दवाई लो, नो क्लास मिसिंग, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन क्लास, आपको क्लास में जाना ही पड़ेगा। तो सब लोग मुझे बोलने रहे, तुम्हारा आंख लग हो गया, दवाई खाओ। तो मेरा दोस्त एक थोड़ा क्लोज आके बोला, तुम दवाई खाओ, तुम्हारा आंख बहुत लाल हो रहा है। मैं गुस्सा हो गया, बिकॉज मैं फिर अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पूरा रात घोषणा कर रहा हूँ, रात को सो नहीं पा रहा, घोषणा करके एंड वो सुबह आके मुझे बोले कि वो दवाई खाओ, बहुत फोर्स कर रहा था मुझे। तो मैं उसको गुस्से से बोल दिया, मैं ठीक हो गया यीशु मसीह के नाम से, मुझे बार-बार बोलते मत करो। देन मैं चंगा हो गया विदाउट मेडिसिन। सब लोग, नॉट एवरीवन, 10 तो होगा शायद, सब लोग बुखार हो गया, तब दवाई ले लिया। तो सर आके बोला, अरे तुम लोगों को फेथ के बारे में सिखाया था, कहाँ गए तुम लोग? सर इबोंचा आके बोला, तुम लोगों को फेथ के बारे में सीखा तो दवाई ले लिया। Very so faith, he said. But when I was like, when I applied my faith, I got healed. I was thanking my pastor. If I could not learn this, मैं पसंद नहीं सीखा होने से मैं भी दवाई खा लेता। So ये एक्सपीरियंस हुआ, एक आपका जो परमेश्वर ने जो वो आशीष दिया है, वो अधिकार दिया है, first you have to use with your own body. कुछ बीमारियां हैं यीशु के नाम से, एंड जब आपका वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप दूसरे के ऊपर हाथ रख पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। विदाउट कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट ले हैंड ऑन समवन। यू हैव टू एक्सपीरियंस फर्स्ट दिस। आमेन। बिकॉज़ यहां पे क्या बोला, they'll pick up the serpents. One Saturday, okay, I have placed this verse on. Check. Yes. हम लोग पढ़ेंगे इसको, then I'll explain this. Then he called his 12 disciples together and gave them the power and authority over all demons to cure disease. तो यीशु मसीह ने क्या अधिकार दिया है कि बीमारी को जाके चंगा करने के लिए। How? What is this? How he will heal? How Jesus will heal? By laying hands. That means your hand is important. So many God healing slow. जब अंकित ने बोला कि तुम्हारा जहाँ पे तुम्हारा कोले में हाथ रखो, शिलोह में कौन गया था? Many God heal. हाथ जाए, हाथ रखी से निजो बीमारों को जोत रखी से कुछ तो ऐसे। So something there is, ये नॉर्मल नहीं है मेरे भाइयों, ये नॉर्मल नहीं है। This lady I don't think of God. Amen. तो क्या बोला कि डिजीज के ऊपर हाथ रखो, डिजीज हो गया, they'll pick up serpent. I have fixed. दो बार मैंने शैतान का सामना किया, सपने में नहीं, ठीक है, रियल हकीकत में होता है। यहाँ पे भी कोई है। फर्स्टिंग को जब आया था, वो लोग ये एक्सपीरियंस करता, फर्स्टिंग में नहीं आया, वो मिस कर दिया। एक सिस्टर जी यहाँ पे फर्स्टिंग में हम लोग गाना गा रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, वो उसको उसका फैमिली ने विचक्राफ्ट किया था। विचक्राफ्ट मतलब जादू। वहाँ पे बिना पढ़े आंटी भी था, वो सिस्टर यहाँ पे आया था, हम लोग वर्शिप कर रहे हैं, वो गिर के शैतान के साथ चिल्ला रहा है। वो परमेश्वर का जो प्रेजेंस है वो सह नहीं पा रहा है।
that Satan cannot bear the anointing. Because your body, जब आप शैतान के पास जाओगे, शैतान झेल नहीं पाएगा, because your body is anointed. तो जब हम यहाँ पे प्रे किया तो वो हिल गया, वो आपका रोल करने लग गया. देन क्या किया हम लोग लाठी नहीं लिया, आग नहीं जलाया, हाथ रखा. We lay hand on her and the demon left. So your hand and power. Soul, spirit, and body is sanctified to Jesus. ऐसा नहीं खाली आत्मा ही वो हुआ है, इसलिए बोलते हैं कि only आत्मा आत्मा. Yeah, my own uncle is so. Uncle भी मत देखो uncle ही. You know, all of my family are Indians. Yeah, I love sharing the link. So my uncle used to say, recently he called me. I went to, मैं शिलोंग में गया और बोला कि तुम अंकित साधनों के रिवाइवल में क्यों गया? हीलिंग विलिंग कुछ नहीं होता है, क्यों जाते हो? खाली वचन से, खाली बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो. तो भाई ये क्या है? This will be the sign to those who believe. Yes. Those who believe, they will drive out demons. तो हमने वही किया. वो सिस्टर को हाथ लगाया, प्रे किया, because your hands are anointed. शैतान थक गया. एंड पता है 6 आत्मा था. कौन था उसे हाथ ऊपर करोगे? या प्लीज. या बिना अपने अंतियों से. सो वो डिमन 6 हम लोग निकल रहे, एक जा रहे, 6 था, राइट? तो 6 था. जब वो सिस्टर और जब वो ऐसा आत्मा निकल गया, वो विश्वास जो उसका फैमिली ने कुछ खिलाया था, जब वोमिटिंग करके वो निकल गया ना, वो चीज पानी लाए, पानी वोमिट किया, वो चीज निकल गया, देन वो नॉर्मल हो गया. इसलिए बोल रहा हूँ ये बुखार है सर, अगर आई एम सिक so get it medicine, get it right, you lay hand on her, she get it. Yes. See, that's why I said you will not have confidence. और confidence नहीं होगा लेन करने के लिए. First experience yourself. When I went to my pastor house, जब पास्टर का घर शिफ्ट हुआ था पिलिंगकता में, अभी पास्टर का घर जो गया है, जलफाई का ट्री देखोगे, जलफाई का ट्री देखोगे. पास्टर के घर के सामने जलफाई का ट्री लिखा है, वो फ्रूट नहीं दिया था. I remember pastor wife declare, right? वो पेड़ जो है वो फल नहीं दिया था. एंड पास्टर लोग जब घोषणा किया, आई रिमेम्बर पास्टर का वाइफ बोला, अरे देखना ये पेड़ फल देगा. जब मुंह से जीवा से वो बोला, सच में फल आ गया. after some money, in the season फल के वो फल ही नहीं देता था. Why? Because wherever we go, our body goes, we carry the anointing, और सब अंधकार, सब कर्स ब्रेक होता है. हालेलुया. और उस जगह में जाना, अभी तो आप लोगों को एकदम रास्ता दिखता है, रास्ता एकदम रास्ता खराब था, एकदम जाने से आपका आप यहाँ बैठोगे तो उधर चला जाओगे, उधर ठीक है. आए फोटो दिखा सकते हो, आए प्रूफ. पास्टर बोलता है हम लोग जाएंगे तो वो रास्ता ठीक हो जाए. अभी देखना ठीक हो गया. ऐसा नहीं कि बहुत साल बाद नहीं, जाते कुछ दिन बाद उसमें टेंशन आ गया. आमेन. एंड अभी भी यहाँ पे है कालीपाड़ा का कोई लोग आंटी है, बड़ी है. कालीपाड़ा जो अभी जो शॉर्टकट जाते हैं ना, वो रास्ता, मतलब कालीपाड़ा जो पहाड़ उठते हो, एक शॉर्टकट रास्ता है जहाँ मौसम का घर है, राइट? वो रास्ता एकदम हालत खराब था, राइट? मौसम वो रास्ता खराब था, एकदम खराब था. वो तो एकदम वर्स. गाड़ी ऐसा होगा गाड़ी, राइट? मौसम. हम लोग जब फेलोशिप स्टार्ट किया ना, वहाँ पे लोग बोल रहे कि अरे ये रास्ता कभी ठीक ही नहीं होगा. ऐसे ही है. लोग बहुत घमंडी है, जमीन देना नहीं चाहते रास्ते के लिए. हम लोग गया, इतना रास्ता बंद बराबर हो गया. हम लोग प्रार्थना नहीं उसके लिए. So where you go, your body goes, you carry the anointing. Amen, hallelujah. So इसलिए पॉल यहाँ पे बोला है कि पॉल क्या बोला है? Let's do once. I brethren, by the mercy of God, present your body to sacrifice
Only acceptable to God. This is your reasonable service. रिजनेबल सर्विस क्या है? हाथ रखने के लिए, जहां जाओगे आशीष ही आशीष, फॉर दैट यू हैव टू गिव योर बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। प्रभु मैं अपना शरीर भी तुमको देता हूं। पॉल बोलता है कि आई डिसिप्लिन माय बॉडी, मैं डिसिप्लिन करता हूं, क्योंकि पॉल डिसिप्लिन इसलिए करते हैं ताकि परमेश्वर काम के लिए और यूज हो। पॉल को सांप ने काटा, वो नहीं मरा, उसका शरीर ने काटा, नहीं मरा। Why? Because his body, he disciplined his body, so the spirit, the anointing flows. Amen. तो हम सब नहीं डरना है। कुछ नहीं, तुम्हारा यहाँ पे ना एक सिस्टर का कैंसर हुआ है, यहाँ पे ना हुआ, मत डरो। कौन है? आने दो, मैं प्रे करो। She have to have boldness. से मैं, मेरे पास बोलनेस है, मैं नहीं डरता हूँ कि यीशु मेरे साथ है। हाथ रखूंगा, चंगाई होगा। मैं घोषणा करूंगा, जो भी घोषणा किया वो पूरा होगा। Amen. So स्पिरिट एंड बॉडी, मेरा स्पिरिट नया हो गया है, क्योंकि यीशु ने मेरा आत्मा को जिंदा किया है। मेरा सोल जो गलत सोचता था वो अभी गलत नहीं सोचता है। मेरा माइंड परमेश्वर के बारे में सोचता है, और मेरा शरीर परमेश्वर का काम को करेगा। आमेन, हालेलुया। आंखें बंद करें।